یہ بھی یاد رکھیے گا، نجات جو کوئی ایمان لے آتا ہے اسے فوری طور پر ملتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کلمہ اس بات پر مہر ہے کہ نجات انسان کے اعمال سے نہیں ہے. ڈاکو نے شاید ایک دفعہ بھی کچھ جگہ کام نہ کیا. یہ بات اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تم چنگے کام نہ کرو، یہ بھی مطلب نہ لے لیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نجات انسان کے اعمال سے نہیں ہے، نجات انسان کے ایمان پر انحصار کرتی ہے. آمین. اور ایمان جب ہوتا ہے تو ایمان سے مراد وہ کام جو خدا کے بیٹے یسوع نے کیا ہے. ہاللیلویہ. ہماری نجات اس پر انحصار کرتی ہے. براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے. ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987948943 پر واٹس ایپ کریں. Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9231987994,893. بزرگ لوکا طبیب کے وسیلے لکھا گیا انجیلی گیا. اس کو نکال دیجیے 23 چیپٹر نکال دیجیے. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آمین. اہم جو بیٹیوں بہنوں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مسیحت میں ہیں، ہم میں سے بتھیرے 50-60 سال کے ہو چکے اور مسیحی گھرانوں میں ان کا جنم ہوا اور 50-60 سال گزار چکے ہیں، لیکن صلیب کے کام سے، صلیب کے پیغام سے لوگ ناواقف ہیں. اور یہ بہت فکر کی بات ہے. جب تک کوئی صلیب کے پیغام کو، جب پیغام کی بات آتی ہے تو پیغام سے مراد بحث کوئی سٹوری نہیں ہے، پیغام سے مراد وہ کام ہے جو صلیب پر یسوع نے سر انجام دیا. جب تک کوئی صلیب کے کام سے واقف نہیں ہوگا تب تک وہ نجات کو، مسیح میں جو نجات ہے اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائے گا. اس لیے یاد رکھیے گا محض مسیحی گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. اور میں یہ کہتا ہوں، سنو بیٹیوں بہنوں، اس آدمی پر بھی افسوس جو اس دنیا میں آ کر ایک مسیحی خاندان میں، مسیحی گھر میں پیدا ہو کر بھی خدا کے بیٹے یسوع کو نہ پہچان سکے. اس آدمی پر، اس بہن پر، اس بھائی پر افسوس کہ وہ نجات کو پہچان نہ سکا. یہ بہت اہم بات ہے. سو اس لیے ہوش کے ساتھ کلام کو سنیے، سمجھیے، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی تک مضبوط ہو سکیں. آمین. دوسرا کلمہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یسوع مسیح کی صلیب کے ساتھ 2 اور صلیبیں بھی تھی، یعنی 2 ڈاکو
जो उसके साथ एक दाएं और एक बाएं मसलूब हुआ। ये कलमा जो है, दूसरा कलमा जो 43 आयत में मौजूद है 23 चैप्टर की, ये कलमा उस डाकू के लिए बोला गया। लेकिन क्योंकि खुदा का कलाम हर जमाने में, हर दौर में सबके लिए मौजूद है, आमीन। तो इसलिए इसकी इतलाक आज भी, लेकिन याद रखिएगा कि जो उस लेवल पर खुद को लाएगा, जिस लेवल पर डाकू खुद को ले आया था, ये कलमा आज भी उसके लिए भी वही काम करेगा जो उस डाकू के लिए काम किया था, आमीन। तो इस कलमे को समझने के लिए हमें इसके इर्द गिर्द के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह के साथ 2 डाकू मसलूब हुए थे। और याद रखिएगा कि इस कलमे से पहले दोनों डाकुओं ने यीशु से बात की थी। फिर यीशु ने सलीब पर ये दूसरा कलमा बोला, और वो कलमा क्या है आयत से पहले पढ़ लेते हैं। क्या है कलमा? 43 वर्स 23 चैप्टर की। उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये दूसरा कलमा है जो सलीब पर यीशु ने बोला। लेकिन क्यों बोला? इसकी जरूरत पेश आई। ऐसे नहीं कलमे बोले गए, बल्कि कलमों की जो भी यीशु मसीह ने सलीब पर अल्फाज कहे, उनकी जरूरत पेश आई। पहले कलमे की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए आज हम क्या करते हैं, फ्राइडे के दिन, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ ये, लेकिन फ्राइडे के दिन एक ट्रेंड बन चुका है। क्या ट्रेंड? 7 बच्चियां नूं कलमे रटा दियो, उन्हां नूं कहो तुसीं जी इत्थे कलमे बोल दियो। भाई मैं ये तो नहीं कह रहा कि बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए, ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन हम गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने का। सो इसलिए ये सलीब का पैगाम और गुड फ्राइडे का दिन बहुत अहमियत का हामिल है क्रिश्चियनिटी में, ये याद रखिएगा, आमीन। तो इसको वही वहां पे प्रीच करे जो सलीब को समझ सकता है, आमीन। ये महज कोई स्टोरी नहीं है, या महज बच्चों की कोई तकरीर नहीं है कि लिख के ले आओ और फटाफट सामने रजिस्टर रख के पढ़ दो और लोगों को सुना दो और तालियां बजा दो, बल्ले बल्ले जी फलाने ने बड़ा अच्छा प्रीच किया है। ये महज जिस्मानी बातें हैं, इनका रूहानियत से कोई तल्लुक नहीं होता है, ये याद रखिएगा। सो इस कलमे को पहले हम थोड़ा सा गौर कर ले, सीख ले। ये कलमा नजात की यकीन दहानी का कलमा है, और यीशु मसीह ने डाकू को नजात की यकीन दहानी दिलाई। और क्या कहा उससे? और मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही, कल की बात नहीं है, क्या डाकू से कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां एक बहुत बड़ा भेद भी खुल गया इस कलमे में, और वो क्या है? अमूमन लोग परेशान होते हैं और मुख्तलिफ तरह की तालीम मौजूद है कि मरने के बाद क्या होगा। सुनो जरा गौर से, बेटियों बहनों, गौर से मेरी बात को सुनो। लेकिन लोगों की सोच, लोगों की तशरीह कुछ भी हो, जो खुदा के बेटे ने कह दिया उस पर गौर कीजिए और उस पर यकीन कीजिए, आमीन। और वो क्या है? एक ईमानदार
जब इस दुनिया से जाता है, जब वो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ लेता है और इस दुनिया से कूच कर जाता है, तो उसकी जगह कौन सी है? वो जगह फिरदौस है, जिसे जन्नत भी कहते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। दाएं बाएं तो जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। यीशु ने जो इस डाकू को कहा, वही मुझे और आपको भी कहा, अगर हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो। आमीन आमीन। क्या है? एक ईमानदार जब इस दुनिया से कूच करता है, दुनिया से राखलत कर जाता है, तो याद रखिएगा उसकी जगह जो है, अगली जगह जो है, वो फिरदौस है, जिसे जन्नत कहते हैं। और इसका जिक्र पौल ने किया, सुनिए, और कहाँ किया? आए दूसरा ग्रंथियों निकाली जल्दी से, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन दूसरा ग्रंथियों जरूर निकालिए और इस बात को जरूर समझ लीजिए। और ये बहुत अहम तालीम है कि मरने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, और जो पीछे रह जाते हैं वो भी उलझे हुए हैं, क्यों कितने गए। और आज भी इस लाइल्मी के सबब से, सुनो बेटियों, इस लाइल्मी के सबब से आज भी मुर्दों के लिए दुआएं की जाती है, और क्या कहा जाता है? खुदावंद तू उन्हां दे गुनाह माफ कर दे। और फिर क्या कहते हैं साथ? लाइल्मी से कह ले, गफलत कह ले, फिर साथ क्या कहते हैं? खुदावंद उन्हां नूं चंगी जगह दे। क्यों हम ये कहते हैं? क्योंकि हम हकायक से, तालीम से, सच्चाइयों से नावाकिफ है, इसलिए आज भी ये दुआएं करते हैं। सुन लीजिए कि फिरदौस कहाँ है। बुजुर्ग पालूस को ये तजर्बा हुआ, 12 चैप्टर दूसरा ग्रंथियों, और उसको ये तजर्बा हुआ कि फिरदौस कहाँ है। और उसने क्या कहा? अगर आप 3 वर्ष देखें, अगर 2 वर्ष भी देख ले साथ, तो जल्दी से इसको कोई भी पढ़ दे। मैं मसीह में एक शख्स को जानता, वो अपनी बात कर रहा है, जानता हूं 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। कहां तक उठाया गया? तीसरे आसमान अगर तक। साथ रहिए ताकि तालीम समझी जा सके। बेटियों बहनों गौर से सुनिए, पालूस कहां तक उठाया गया है? तीसरे आसमान तक। तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम के बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। आमीन। फिरदौस कहाँ है? जी कहाँ है? ऊंची आवाज से बोलो। तीसरे आसमान पर। इसका मतलब क्या है? कि जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, जो कोई नजात याफ्ता है, जब वो दुनिया से कूच करेगा, तो आप इस बात में रत्ती भर भी शक ना करें, वो कहां जाएगा? वो फिरदौस में जाएगा। हालेलुया। जिसे आप जन्नत कहते हैं। आमीन। उसकी जगह कौन सी होगी? फिरदौस में, जन्नत में। और वो कहां होगा? तीसरे आसमान पर। तीसरे आसमान पर। आमीन। आमीन। और वहां आपको कौन कौन मिलेगा? वहां सारे मुकद्दस लोग मिल जाएंगे। आए जोरदार खुदावंद के लिए। वहां बुजुर्ग अब्राहम भी मिल जाएगा आपको, वहां आपको बुजुर्ग मूसा भी मिल जाएगा, वहां आपको अयूब भी मिल जाएगा, वहां आपको दानिएल भी मिल जाएगा, वहां आपको पतरस, पालूस और यूहन्ना भी मिल जाएंगे, क्योंकि फिरदौस मुकद्दसीन की आरामगाह है।
आमीन। इससे दाएं बाएं ना जाए। ये बाइबल की वो ठोस तालीम है जो एविडेंस के साथ मौजूद है। और यीशु ने उस डाकू से पता क्या कहा? सुनिए गौर से, क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं। यहां सच से मुराद पता क्या है? यानी ऐसा सच है जिस पर यकीन करने वाले को रत्ती भर भी किसी को, ऐसा सच जिसमें रत्ती भर भी किसी को शक नहीं करना है। आमीन। तो इसलिए याद रखिएगा, आप ईमान में रहेंगे, दुनिया से जाएंगे तो आपका ठिकाना क्या है? फिरदौस है, जन्नत है। जन्नत किसी की दुआओं से नहीं मिलती है, जन्नत किसी की देगों से भी नहीं मिलती है, जन्नत किसी के कहने से भी नहीं मिलती है। जन्नत यीशु पर ईमान लाने से मिलती है। आमीन। जोरदार खुदावत के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, कोई किसी को बचा नहीं सकता, हर किसी का ईमान ही उसे बचाएगा। लेकिन हम इस दुनिया में रहते हुए एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आमीन। हम यीशु का बदन है और हम सब उस बदन का हिस्सा होते हुए हर एक क्या है? उस बदन का एक उस है, अज़ा है, और हर अज़ा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमें हर एक अज़ा की क्या करनी है? फिक्र करनी है, ताकि वो ईमान में मजबूत हो सके। आमीन। और ईमान ही से हमेशा की जिंदगी है। आमीन। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही, ये भी याद रखिएगा, नजात जो कोई ईमान ले आता है उसे फौरी तौर पर मिलती है। और ये भी याद रखिएगा कि ये तलबा इस बात पर मोहर है कि नजात इंसान के अमाल से नहीं है। डाकू ने शायद एक दफा भी कुछ ज्यादा काम न किया। ये बात, इसका ये भी मतलब है कि तुम चंगे काम ना करो, ये भी मतलब ना ले लिया जाए। इसका मतलब क्या है? कि नजात इंसान के अमाल से नहीं है, नजात इंसान के ईमान पर इंसार करती है। आमीन। और ईमान जब होता है तो ईमान से मुराद वो काम जो खुदा के बेटे यीशु ने किया है। हालेलुया। हमारी नजात उस पर इंसार करती है जब ईमान की बात होती है। तो इसलिए याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि जो नजात है, जो जिसकी हम बात करते हैं, और से सुनिएगा, ये नजात महज गुनाहों से मुआफी की नजात नहीं है, बल्कि ये नजात बहुत बड़ी है, ये नजात बहुत वसी नजात है। और ये नजात गुनाहों से मुआफी से शुरू होकर खुदा के साथ मिलाप और मुर्दों में से जी उठने और अब्दियत में खुदा के साथ हमेशा रहने के साथ जुड़ी हुई है। आमीन। ये बहुत बड़ी नजात है। इसलिए इस डाकू को जो नजात मिली, ये याद रखिएगा, बहस गुनाह माफ नहीं हुए, इसको वो नजात जो मुकम्मल खुदा के बेटे में नजात है वो इसको मिली है, और हमेशा के लिए इसको जिंदगी में दाखिल कर दिया गया है। आमीन। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ। और ये भी याद रखिएगा कि फिरदौस में यीशु ने कितनी खूबसूरत बात और कितनी ब्लेसिंग वाली है ये बात, ईमान को ताजा करती है। यीशु ने उसको कहा कि मेरे साथ ले जल्दिया तेनू रफाकत ना मिल सकी है गाजरा चिथे आ है, लेकिन तूने सलीब पर खुदा के बेटे यीशु को कबूल किया, जलाल को देख लिया। आमीन। तो देखिए उसको रफाकत जो मिली, कैसी मिली? हमेशा हमेशा की खुदा के बेटे की सोहबत, रफाकत, कुर्बत मिल गई। हालेलुया। आए जोरदार खुदा। देखिए कोई जगह काम नहीं, लेकिन हमेशा के लिए खुदा का बेटा मिल गया, हमेशा के लिए उसकी रफाकत मिल गई। तो ये है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आए अब इस कलमे को समझने के लिए दो बातें और समझिए जो बहुत जरूरी है, और वो क्या है? दोनों डाकुओं की जिंदगी पर गौर कीजिएगा। तो 3 सलीबे, मैं इसे ऐसे कहता हूं, बेटियों बहनों सुनिए जरा गौर से, 3 सलीबे और 3 पैगाम।
कितनी सलीबें? 3 सलीबें और 3 पैगाम। और 3 पैगाम। जरा गौर से सुनिएगा, पहला पैगाम क्या है? पहली सलीब क्या है? नजात को रद्द करने वाली। दूसरी सलीब क्या है? नजात को पाने वाली। और तीसरी सलीब क्या है? नजात देने वाली। आए जोरदार खुदावंद के लिए 3 सलीबें और 3 पैगाम आपको नजर आएंगे। एक वो है सलीब जिसने नजात को रद्द कर दिया, जो गैर नजात याफ्ता रहा, और एक वो है जिसने नजात को पा लिया, और एक वो है जो नजात देता है। आमीन। सो इसलिए आए मरकजी हवाले पे आ जाए, और एक दो बात जरूर और सीख लीजिएगा। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक दो बात इस कलमे को समझने के लिए जरूर सीख लीजिए। पहला जो डाकू है वो क्या कहता है? सुनिए बहनों बेटियों, गौर से सुनिए। पहला डाकू बोलता है और क्या कहता है? 39 वर्ष फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। जो भी हो, सुनो, बचने की ख्वाहिश ये भी रखता है। बचने की ख्वाहिश याद रखिए, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो बचने की ख्वाहिश ना रखता। ये याद रखिएगा। इसलिए क्या कहता है? क्या तू मसीह नहीं? तो अपने आप को और हमको बचा। बचना चाहता है, लेकिन ये कौन सी नजात चाहता है? फिजिकली। कौन सी नजात? फिजिकली। बेटी जरा गौर से सुनिएगा और बात को समझिएगा। कौन सी नजात चाहता है? ये सिर्फ उस सलीब से, तकलीफ से बचना चाहता है। बदनी नजात चाहता है। फिजिकली तकलीफों से बचने के लिए खुदा के बेटे को कह रहा है कि खुद भी बच और मुझे भी बचा। नजात चाहता है, लेकिन ये वो नजात नहीं चाहता है जो अब्दी नजात है, जो रूहों की नजात है, जो गुनाह से गुलामी की नजात है, जो मौत से छुटकारे की नजात है, जो लानतों से छुटकारे की नजात है। ये वो नजात नहीं चाहता है। फिजिकली तौर पर ये यीशु मसीह से नजात चाहता है, फिजिकली फायदा चाहता है। इसलिए सुनिए गौर से, कलाम में ये लिखा, सुनो गौर से बेटियों बहनों, गौर से। हो सकता है आप में से यीशु मसीह से सिर्फ फिजिकली फायदा चाहते हैं। इधर बेटा, इधर देखो, जो मैं कह रहा हूं उस गौर से सुनो, एक एक लफ्ज गौर से सुनो। ये आपके फायदे के लिए। आप यीशु से क्या चाहते हैं? आपकी उम्मीद क्या है यीशु से? और आज यही मसला है। हम यीशु के पीछे, यीशु मसीह के पीछे भीड़ भाग रही थी। यीशु ने कहा फानी खुदा के लिए मेहनत ना करो। आज यही मसला है। हम सारी दुआ चेक कर लो, बहुत कम लोग ने जिन्होंने दुआ च रूहानी चीजां टोटली नौकरी और टोटली फिजिकल चीजों से भरी हुई, पैसों से भरी, जॉब से भरी और दीगर चीजों से। ये डिमांड है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदावंद ये नहीं देता, लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं है। पहला कुरिन्थियों इसका 15 चैप्टर निकालिएगा जल्दी से, फिर आपने वापस आना है। मैं टाइम भी का भी ख्याल रख रहा हूं और बस दूसरे डाकू पे थोड़े मिनट के लिए आपको सिखाऊंगा और फिर हम खत्म कर देंगे, लेकिन इसको समझिए, जरूर समझिए। 15 चैप्टर बेटियों बहनों गौर से सुनिए। पहला कुरिन्थियों 15 चैप्टर
اور اس کی 19 वर्ष غور سے سنو بہن. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں. مسیح سے کہاں تک امید ہے بیٹیوں؟ کہاں تک امید ہے؟ اسی زندگی میں. اور بعض اوقات جنہاں نو زندگی چ چنگیاں چیزاں نہ ملن وہ ناراض ہو کے بیٹھے نہیں سنا ہے. میں اپنے خدا نہ ناراض ہوں. کیوں؟ انہیں میری یہ گل نہیں منی. دس غور سے سنو. اگر ہم صرف اسی زندگی میں امید رکھتے ہیں مسیح میں امید رکھتے ہیں سب آدمیوں سے زیادہ تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. آمین. بھائی مسیح سے امید باندھو لیکن کہاں کی باندھو؟ اپنی چیزوں جو دنیا کے پاس نہیں ہے خداوند آپ کو وہ دینا چاہتا ہے. آمین جو کبھی نہ چھین پائیں آپ سے خداوند آپ کو وہ دینا چاہتا ہے. جن چیزوں پر گناہ کا اثر نہیں ہے خداوند آپ کو وہ چیزیں دینا چاہتا ہے. آمین. آمین اس لیے اگر ہم بھی اس ڈاکو کی طرح فزیکلی فائدوں کے لیے خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں تو یاد رکھیے گا بد نصیب ہے. بد نصیب ہے ایسا شخص. اور آج یہی حال ہے. ہر کسی کا ٹارگٹ میں بھی شامل خود کو کرتا ہوں. ہر کسی کا ٹارگٹ فزیکلی چیزیں ہے. بیٹا چنگی جاب لگ جائے چنگے پیسے جیب چ آ جائے کار ہوا چنگا بن جائے تے چنگیاں چیزاں دنیا دیا. ہر کسی کا یہ ٹارگٹ ہے. اس لیے ہم بڑی گمراہی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں خداوند دیتا نہیں ہے لیکن یہ چیزیں وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ضرور دے گا. آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. ایماندار کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے. اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد جو ہے خدا کے بیٹے کے لیے جو اس کے لیے ہوا اور جیونا ہے اس کے لیے جینا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. آمین آمین. آمین آج ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اور جڑی اسی گل کر رہے نا میرے تے بڑی خدا دی رحمت کی ہویا ہے سارا کچھ مینوں مل گیا. اس سے رحمت کیوں ججمنٹ نہ کرے. تواڈے نال دے کھا دے دھیان مار لیا جے وہ یسوع نو بالکل جانتے نہیں جے تے کار بھرے جے چیزاں تسی کیڑے دنیا چ رہندے پھردے. رحمت صرف اس پر ہے جس کی زندگی میں خدا کا بیٹا اور اس کے وسیلہ سے ملنے والی نجات ہے. آمین اس پر خدا کا فضل ہے. ہاللویا. ہاللویا. اس پر کیا ہے؟ خدا کا فضل ہے. فضل ہے. اس ڈاکو پر کیا ہوا؟ خدا کا فضل ہوا. آمین. اس لیے اپنی امید کو پہچانو. کہاں تک ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا صرف یہ سوچ رہے ہو کہ امریکہ دا ویزا لگ جائے تواڈے لئی؟ کیا یہ سوچ رہے ہو کہ بچے جڑے نے وہ پیسہ کما لین؟ کیا یہ سوچ رہے ہو کہ اچھی نوکریاں تے چنگا نام دنیا تے روشن تہاڈا ہوئے؟ کیا یہ سوچ رہے ہو؟ اگر صرف محض یہ چیزیں ہیں تو آپ بڑی گمراہی میں ہیں. اور بائبل آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اس لیے وہ کیوں رہ گیا؟ اور بھی وجوہات ہو سکتی تھی اس ڈاکو کی غیر نجات ہونے میں لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف بدنی نجات فزیکلی نجات یسوع سے چاہتا تھا. اور دیکھیے کہ یسوع نے ادھر کوئی گل منہ چوں نہیں کڈی. دنیا دی خواہشاں رکھ کے پہ دعاواں کرتے پھرو کوئی گل نہیں جے کتوں سنی جانی کوئی آواز نہیں جے تانوں آنی. آواز تب آتی ہے جب کوئی ایمان سے اسے پکارتا ہے آمین وہ بولتا ہے. ہاللویا. آئے زور دار خداوند کے لیے. اس نے کہا جس نے کوئی بات نہیں کی ہے. آج ہماری دوڑ کا مقصد کیا ہے؟
صرف ایک ہی کام رہ گیا ہمارے بچوں کو، چرچ میں آنے کے باوجود بھی یہ اتنا بھوت تیزی سے سوار ہے، دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے فزیکل چیزوں میں، اور ہمارے بچوں میں 100 میں سے 80% لوگوں کو یہ بھوت سوار ہے کہ وہ چرچوں میں آ کر بھی، خدمت میں آ کر بھی، دنیا گاڑیاں، اچھی اچھی گاڑیاں، اچھے اچھے کپڑے پانے کی محض خواہشوں سے، بچوں کو عالیشان مکان دینے کی خواہشیں، پیسہ خوب ہو، یہ خواہشیں ساری بھری ہوئی، یہ پرابلم ہے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میں یہ نہیں کہ میں باہر خود کو دکھا رہا، ہم سب اس میں شامل ہیں، لیکن بڑا غلط ہے۔ بڑا کیا ہے؟ غلط ہے۔ یسوع مسیح صرف فزیکلی، لیکن روحانی زندگی کے لیے کوئی امید نہیں ہے، اپنی زندگی کے لیے کوئی امید نہیں یسوع سے باندھے ہوئے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم اس لیے خداوند تیرے بیٹے پر ایمان لائے کیونکہ اس میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، موت ہمیں اپنے اختیار میں نہیں رکھے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اس دنیا سے مر کچھ تو کر جائیں گے، لیکن ہماری جگہ جو ہے خداوند نے یقین دلایا ہے، مہر کر دی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آمین۔ اور یسوع مسیح نے یہ کلمہ مہر کر دیتا ہے، فضل سے نجات پر مہر ہے، اور ایسا شخص یقین کر لے کہ وہ گناہوں کی معافی اور مردوں میں سے جی اٹھنا اور ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ آمین۔ اسے یقین کرنا ہے۔ اگر آپ یقین کبھی چھوڑ دیں گے تو آپ کا شک آپ کو لے ڈوبے گا، آپ کا شک آپ کے ایمان کے جہاز کو غرق کر دے گا، یاد رکھیے گا۔ آخری لمحوں میں بھی سنیے، آخری لمحوں میں بھی جب کہتے ہیں نا کہ وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، لے جانے والے نظر آ رہے ہیں، آخری لمحات سنیے، آخری لمحات میں بھی اب شک نہ کیجئے گا، اس کلمے کو یاد رکھیے گا، اس کلمے پر یقین کیجئے گا جو یسوع نے یہاں کہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ نے اس پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ آخری وقت میں، آخری لمحوں میں بھی اگر آپ کو کوئی اور خیال آئے گا مجھے پتہ نہیں کتنے سٹن گے، کہاں میں جاؤں گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آگے کیا سلسلہ ہے، آپ نے رتی بھر اس پر نہیں سوچنا ہے، یقین کرنا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے میری جگہ، میری آرام گاہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، فردوس میں ہے، جنت میں ہے، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ آئے زوردار خداوند کے لیے آپ سے یقین کرتا ہے، اور جدو تسی سوو گے نا، یعنی جنہوں اسی مرنانے ہیں تے انجلی خوف چ نہیں ہے، چہرہ مسکراتا ہوگا اور آنکھیں بند ہو جائیں گی اور روح آپ کی فردوس میں، جنت میں خدا کے لوگوں کے ساتھ چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا آپ کے چہرے پہ خوف نہیں ہوگا۔ خوف کن کس چہروں پہ ہوتا ہے؟ جن کو اپنی منزل کا، ٹھکانے کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آمین۔ ہمیں پتہ ہے۔ آمین۔ اس لیے یاد رکھیے گا دشمن بھلے کچھ بھی کر لے آپ کو، وہ صرف آپ کو گمراہ کرے گا، اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے۔ وہ آپ کو کہے گا تیری نجات مشکوک ہے، تو ہونوی گناہاں دے وچ ہے، تو ایتھے جائے گا، تو سزا پائے گا، تو یہ ہوئے گا تیرے نال، وہ آپ کے اندر خوف پیدا کرے گا، ڈر پیدا کرے گا۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے خدا کے بیٹے کے کلام پر یقین کرنا ہے اور ہر طرح کے ڈر کو دور کر دینا ہے۔ آپ دیکھیے گا وہ خود ہی بھاگ جائے گا، اس کی شکست آپ کے بھروسے پر ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام پر آپ کا جو بھروسہ ہے یہی اس کی شکست ہے۔ آمین۔ اس پہ کھڑے رہیے گا۔ آمین۔ دوسرا جو ڈاکو ہے، آئے اس پر غور کیجئے، نکالیے میرے ساتھ دوسرا ڈاکو، اور میں ختم کرتا ہوں صرف چند باتیں۔ دوسرے ڈاکو کا کیا ایمان ہے، آئے ذرا اس پر غور کر لیجیے گا۔ تو لکھا ہے، تو پہلی صلیب آپ کو کیا پیغام دیتی ہے؟ نجات کی خواہش تو ہے فزیکلی چیزوں کی، اس لیے وہ غیر نجات یافتہ رہا۔ لیکن دوسرا ڈاکو کیا کہتا ہے، دوسری صلیب کیا کہتی ہے؟ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی
बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब जरा गौर से सुनिए, पहली जो बात है इसकी, यकीनन इसके दिल में ये, अगर दूसरी अनाजील के अंदर देखे आप तो ये भी उसके साथ साथ लिखा है, दोनों डाकू, लेकिन हालात को देखे, वो आगे पीछे देखे तो आपको नजर आएगा कि उलमा जो है वो यीशु मसीह पे ठट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों डाकू लटके हुए थे सलीब पर। तो इर्द गिर्द का माहौल क्या था? इर्द गिर्द का माहौल ये था कि उलमा जो वहां पे थे, फरीसी थे, सरदार थे, वो क्या कह रहे थे? उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा, नीचे उतर। फिर कुछ गिरोह जो ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि ऐ यहूदियों के बादशाह, अपने आप को बचा, ऐ यहूदियों के बाद। तो ये भी सुन रहे थे दोनों डाकू, लोग क्या कर रहे हैं? ठट्ठे बातें कर करके हंस रहे हैं, और यीशु भी सलीब पर लटका हुआ है, दोनों डाकू साइड में, एक दाएं एक बाएं है। तो ये सारी पिक्चर इनके सामने ही थी। फिर एक और काम किया गया, और वो क्या था? एक तख्ती खुतबा लिखकर उसकी सलीब पर यीशु की लटकाया गया। अब सुनिए गौर से, अब बेटियों इधर सुनो, जरा थोड़ा जा सुनो, ताकि बाइबल को बातों को समझ सको। एक तख्ती यीशु की सलीब पर लटकाई गई लिखकर, और उसमें क्या लिखा हुआ था? यहूदियों का बादशाह। सरदारों ने या काहे ने कहा ए ना लिख। उसके यूहन्ना की इंजील में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा कि उन्होंने जाकर उससे कहा कि ये बदल दे, लेकिन उसने कहा, हेरोदिस ने कहा कि जो मैंने लिख दिया सो मैंने लिख दिया। अब सुनिए, ये काम कर गया, उनकी हमाकत काम कर रही है। गल चिट्ठी आज के नहीं, उनकी हमाकत काम कर रही है। और वो 3 जुबानों में लिखा गया था, लातीनी, यूनानी और इब्रानी जुबान में। और वो क्या लिखा गया था? यहूदियों का बादशाह, और 3 जुबानों में लिखा गया। और इब्रानी जुबान उनकी मजहबी जुबान थी, लातीनी और यूनानी ये आलमगीर सत्ता की ताकत को बयान करती है। अब क्या है? खुदा की हिकमत काम कर रही है, उनके ईमान की लर्जिश ने ये सारा काम किया है। और सुनिए, खुदा की हिकमत काम कर रही है और मसीह बादशाह है। इस बात का सबूत जो है, प्रूफ जो है, इस बात की मुनादी सलीब पर से वो लिख कर लगा दिया गया और आलमगीर सत्ता बना दी गई। आमीन। ऐ जोरदार खुदा, आलमगीर सत्ता की मुनादी बना दी गई कि यीशु ही बादशाह है, वही बादशाहों का बादशाह है। और इस बात को आलम की सतह पर बना दिया गया, फैला दिया गया। तीनों जुबानें, तीनों मजहबी जुबान में भी, लातीनी में भी और यूनानी में भी वो खुतबा लिखा हुआ था, और इसको आलम की सतह बना दिया गया। और ये उनकी हमाकत ने ये काम किया, लेकिन उनकी हमाकत थी, खुदा की हिकमत थी। आमीन। हालेलुया। उनकी हमाकत और खुदा की, ये सारा मंजर ये डाकू देख रहा था। अब याद रखिएगा कि कोई भी, इसने, मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहता हूं इस डाकू के तलक से। आप एक मसीही घर में पैदा हुए, बचपन से आपके माँ बाप चर्च आ रहे हैं, बाइबलें आपके घर में है, दुआएं आप करते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी। सुनिए गौर से, इस डाकू का ईमान और अपने ईमान को चेक कर लीजिएगा। आप चर्च भी आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन आप जरा देखिएगा कि आपका ईमान कैसा। इस डाकू ने क्या किया? इसने तब यीशु को कबूल किया, इसने तब उसका जलाल देख लिया जब आफताबे सदाकत बादलों में गिरा हुआ था। कैसे भला? सर पर क्या है? कांटों का ताज, सारा बदन लहूलुहान है, हाथ पांव छेदे हुए, वो उनके साथ की तरह सलीब पर लटका हुआ था और तकलीफ की हालत में था। तो क्या हुआ? ये क्या कहता है? पहली बात जो इसने कही, एक बहुत बड़ा बकाशवा, एक बहुत बड़ी सच्चाई इस पर खुल गई। और यकीनन ये रूहुल कुद्स का काम था, क्योंकि रूहुल कुद्स के बगैर कोई भी मसीह मसलूब को पहचान नहीं सकता है। आमीन। रूहुल कुद्स इसकी जिंदगी में काम कर रहा था। इसने पहली पहचान क्या थी? इसने क्या कहा? इसने कहा, इसने कोई भेजा काम नहीं किया। इसका मतलब जरा आप इसने पढ़ लिया, गौर कीजिएगा। जब वो ये कह रहा है कि यीशु बेगुनाह है,
یہ सलीब, ये जो जिस सजा जो ये पा रहा है, उठा रहा है, ये सजा इसकी नहीं है। इसने तो कोई भेजा काम ही नहीं किया, कोई गलती ही नहीं की है, फिर भी सजा पा रहा है। तो फिर सजा पा रहा है, फिर किन के लिए पा रहा है? यानी ये मोहर हो गई कि ये सजा यीशु के अपने किसी गुनाह की नहीं थी, वो फिर भी सजा पा रहा था। तो ये सजा किन के गुनाहों की थी? ये आपके गुनाहों की थी, ये मेरे गुनाहों की थी। आमीन। ये सजा किन के गुनाहों की थी? हमारे गुनाहों की थी। इसने कोई भेजा काम नहीं किया और इससे उसने फर्क पैदा कर दिया। किसमें? उस डाकू की सलीब और अपनी सलीब और यीशु की सलीब में फर्क पैदा किया। फर्क पैदा क्या किया? क्योंकि वो अपने गुनाहों की सजा पा रहे थे, लेकिन यीशु उनके दरमियान जो है उसने कोई गुनाह नहीं किया है। इससे उसने क्या किया? यीशु में और खुद में फर्क पैदा किया। आमीन। आमीन। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, याद रखिएगा कि किसी पर ये बात खुल जाए कि यीशु क्या है? बेगुनाह। यीशु क्या है? बेगुनाह है। और ये तब बेटा उधर ले जाओ, कोई बात नहीं, उधर चला ले जाओ, कोई मसला नहीं, सब क्यों प्रॉब्लम करते हैं, उधर चला ले जाए, कोई बात नहीं। तो यीशु क्या है? बेगुनाह है। ये इसने पहचान। दूसरी बात क्या थी इसमें? मैं क्योंकि टाइम नहीं है तो इस पे ज्यादा जाता नहीं हूं। तो दूसरी बात क्या थी? जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। याद करना। इसका मतलब क्या है? पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शख्स यकीन करता है, ईमान ला चुका, इसने खुदा का जलाल देख लिया कि यीशु मसीह की बादशाही जो है वो आने वाली है और ये उस बादशाही का बादशाह है। ये था उसके पास प्रकाश था। जब उसने कहा कि तेरी बादशाही आए, आप कितनी रोज दुआ ये पढ़ते हैं, दुआएं रवानी, और किया ले तेरी बादशाही आए, लेकिन तैयार नहीं है, सिर्फ पढ़े या रटे है तेरी बादशाही, लेकिन इसका ऐसा ईमान नहीं था हमारी तरह। ये क्या कहता है? जब तू अपनी बादशाही में आए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिर्फ ये भी नहीं है, इसका मतलब वो सारा काम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ईमान ला चुका था कि सलीब यीशु का खात्मा नहीं है, ये मरकर जी उठेगा और ये जलाल में दाखिल होगा और ये बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है, इसकी बादशाही होगी और इसकी बादशाही बहुत जल्द ज़हूर में आएगी। और इसने ये दरखास्त की कि मुझे की करी, याद करी। हालेलुया। जोरदार खुदावंद के लिए ये इसका ईमान था। और ये इसने ईमान कब रखा? जब यीशु इसके साथ सलीब पर लटका हुआ था और ऐसी हालत में था, तो तब इसने यकीन किया कि यीशु बादशाह है और उसकी बादशाही आने वाली है। आज आप जरा गौर करो, कितना यकीन करते हो उस पर, कितना ईमान है आपका। इसलिए ये कलमा उनके लिए है। सुनो, ये नजात का यकीन दिलाता है, जिंदगी का यकीन दिलाता है, अब्दियत का यकीन दिलाता है। ऐसे लोग जब दुनिया से कूच करेंगे तो मौत उन्हें अपने इख्तियार में नहीं रखेगी, वो आलम अरवाह के अंदर नहीं छोड़े जाएंगे, उनके बदन नहीं सड़ेंगे और वो जी उठेंगे। हालेलुया। ये नजात का और जिंदगी का यकीन दिलाता है, लेकिन ये यकीन उनके लिए है जो मसीह मसलूब पर यकीन करते हैं। ये उनके लिए है। आज जोरदार खुदावत के लिए। और आज जरूर गौर कीजिएगा कि आप कितना यकीन करते हैं कि तेरी बादशाही आए। आए अपने सरों को झुकाए, खुदावंद आपको बरकत दे।